It is now visible. Aparna Dai? Yes, yes. Yes, okay. Yeah. Sorry for that. Okay, so let's get started with the session. So, obviously, we are going to talk about logical reasoning in early ages. Uh, so, why do you think it is necessary to teach them logic in such a small age? एक बार हम ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा काम देके या फिर बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इस एज में, उन्हें फ्री रखना चाहिए. एंड ऑन अदर हैंड मैं बोल रही हूँ कि उन्हें लॉजिकल रीजनिंग उनका अच्छा होना चाहिए. सो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है. सो कैन यू क्विकली टेल मी कि हम क्यों लॉजिकल रीजनिंग बच्चों को सिखाना चाहते हैं? एनीवन? ओके, so it has some theoretical background as well. I'll go point wise. So Vygotsky नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था. उन्होंने ऐसी थियरी डेवलप की है कि बच्चे टिल एज ऑफ लाइक उनका चाइल्डहुड खत्म होने तक जो लर्निंग उनका होता है, देयर आर 3 स्टेजेस. फर्स्ट, उन्हें डायरेक्टली कुछ चीज दी गई तो वो कर नहीं सकते ऑब्वियसली. अगर 2 साल के बच्चों को बोला कि जाके 5 kg का कुछ चीज उठाओ, obviously they won't be able to do it. It's not just related to logical reasoning, but any kind of task, they cannot perform it directly. But if any adult, like teacher, parent, caregiver, anyone, if they help them to develop that task, to do that task, they will slowly able to do it. So, for 2-year-old kid, it will be difficult to वो 5 kg का सामान उठाना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा. बट अगर उसे कुछ छोटा उठाना, कैसे उठाते हैं, हैंड ग्रिप कैसी होती है, ऐसे बोल के इफ वी ट्रेन देम इन सर्टेन टाइम पीरियड, उन्हें वो 5 kg ऑब्वियसली नहीं उठा पाएगा बच्चा 6 महीने में, बट एक बड़ा चीज वो उठा सकता है. सेम विथ लॉजिक. अगर डायरेक्टली बच्चों को बताया कि ऐसा होता है वैसा होता है, 100 बहुत बड़ा नंबर होता है, दे वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. बट स्लोली बच्चों को हेल्प कर करके अगर हमने वहां तक ले गए, बच्चे आसानी से वो चीज कर सकते हैं. सिमिलरली पियाजे नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था. उनका कहना भी यही था कि बच्चे जब 2 से 7 साल के होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एंड एट दैट टाइम उन्हें they can able to classify things, and classification is the base of logical reasoning. अगर मेरे पास ऐसे balls है, is it visible my video? Yes. So I have so many kind of balls with me. If I give it to a 2-year-old kid, he will just play with it. वो सिर्फ खेलेगा. बट अगर हेल्प कर करके उसे बताया कि दिस इज ग्रीन बॉल, ये ऑरेंज है, ये येलो है, यहाँ पे अंदर पिंक भी है, सो एंड क्लासिफाई करने के लिए सिखाया, तो ही कैन एबल टू क्लासिफाई इट. यहाँ पे लॉजिक क्या यूज हो रहा है? वी आर क्लासिफाइंग द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कलर. सो दैट्स व्हाई वी नीड some logical reasoning. We can develop some logical reasoning in such early ages as well. So this comes to the next point. Early numeracy मतलब number understanding. We'll come to this point later in some time. So ये जो early numeracy है, नंबर का सेंस है, उससे भी logical reasoning बढ़ता है. And early numeracy is correlated with higher mathematical achievements. मतलब 6-7 साल तक जितनी न्यूमरेसी बच्चे की अच्छी होगी, उतना ही अच्छा मैथमेटिकल अचीवमेंट, लॉजिकल अचीवमेंट बच्चे का आगे जाके एट द एज ऑफ 10, एट द एज ऑफ 15 होगा. अगर 6 साल तक बच्चे की न्यूमरेसी अच्छी नहीं है, सेम विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. वैसा ही आगे जाके होगा कि बच्चे की
मैथमेटिकल थिंकिंग या मैथमेटिकल अचीवमेंट उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी. एंड ऑल्सो दिस इज टू वे, as mentioned above, this is the next point is two way. We need language for understanding mathematics. Like we come across some, I'm so sorry, we come across some verbs like this is words more, less, tall, short. These are few concepts which we teach in languages, and these concepts, less than, more than, these concepts are base of language. And not just in language, mathematics, we need all those things in linguistic developments. And even it helps fine motor skill development, because mostly what happens, what kid do is he count like this: 1, 2, 3, 4, 5. They use their hand for many things. They play with toys, they sort small things. If we give them correct activity, it helps their fine motor skill development. Now let's go to the next part. We discussed why थोड़ा logic is मराठी हिंदी में important. बताएंगे क्या? Okay, अच्छा sorry. रहेगा. ओके, सॉरी. हमने देखा कि लॉजिकल रीजनिंग क्यों जरूरी है, बट लॉजिक क्या है? लेट्स डिस्कस दैट. सो एज आई सेड, हमने देखा कि कप ऑफ टी बनाने में इसमें भी बहुत ज्यादा लॉजिक होता है. अगर हमें एग्जैक्टली रेशो पता नहीं है, एक कप चाय बनाने के लिए कितनी चीनी और कितनी चाय पत्ती चाहिए, चाय अच्छी नहीं बनती. इट रिक्वायर्स अ लॉजिक. कितने टाइम वो बॉईल करना है, कितना छोटा कितना बड़ा वेसल लेना है, एवरीथिंग कम्स अंडर द लॉजिक. सो इन such small instances in our day-to-day life, we use logic unknowingly many times. So that's why I discussed this point. Now I want to ask you the next question. आपको ऐसे कभी लगता है कि आपका जो बच्चा है वो कभी कभी इलॉजिकल बोलता है या फिर इलॉजिकल चीजें करता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं? I'll give you 2 minutes. आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं. So I'm not able to see the chat box, Aparnatai. So if anyone post there something, मुझे सिर्फ बता देना कि क्या कह रहे हैं. Yes, sure. Yeah. It might happen sometime. I have few instances where it seems that बच्चा illogically बोल रहा है या फिर illogically चीजें कर रहा है. हाँ, बहुत बार लगता है ना, यानी बट हम ऐसे समझते हैं कि उसका समझ ही उतना है. हाँ, तो एक आधा किस्सा बता सकते हैं कि क्यों ऐसे लगा कि वो इलॉजिकल है? वो आके हमें चाय देते हैं, पापा चाय पियो, मीन्स ऐसा, ये देखे उसमें कुछ नहीं होता, वो खेल रहा होता है ना अपने अपने इसमें, तो मीन्स वो इलॉजिकल नहीं लगता, बट ऐसे कि हाँ ये बच्चा है अभी ऐसे. ओके, सो they don't, sometimes they play, they don't be real कि चाय देते हैं बट चाय कप में कुछ नहीं होता. That is their play. They are imitating. हमें कॉपी कर रहे हैं वो. जैसे मम्मी रोज चाय देती है, वैसे ही किड भी देना चाहता है सबको चाय, बट वो बना नहीं सकता. So I don't think that is illogical, but they are copying. वही ना, illogical नहीं, ऐसे खेल रहे हैं ऐसा लगता है. राइट. ओके, सो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि बच्चा कुछ इलॉजिकल बोल रहा है ऐसे हमें लगता है, बट एक्चुअली कुछ अलग लॉजिक वो यूज करता है. इट इज नॉट प्रॉपरली इलॉजिकल. सो लॉजिक क्या है हम अभी देखेंगे. 2 चीजें होती है लॉजिक्स में, कुछ फैक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 = 2. ये फैक्ट है, नो वन कैन चेंज दैट फैक्ट. सो आई टेल यू वन इंस्टेंस
of my nephew. मैंने उसे बताया 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, till 5 + 5 = 10. 2-3 दिन मैं यही बता रही थी एंड तीसरे दिन मैंने पूछा 100 + 100 क्या होगा? एनी गेसेस उसने क्या बताया होगा? He knows 1 + 1 = 2. I asked him what is 100 + 100. So he told it is 200. I asked him what is 200 + 200. He told 400. Then I asked what is 500 + 500. Anyone can tell what is 500 + 500? 1000. 1000. But उसने वो नहीं बताया. He said 10,000. Oh, sorry, 1000. 1000. It is 1000. 500 + 500 is 1000. बट उसे पता नहीं है कि 1000 कुछ अलग कंसेप्ट है. उसने क्या उसका पहले नॉलेज यूज किया 5 + 5 10. So 500 + 500 must be 1000. So ये हमें लगता है कि वो इलॉजिकल बोल रहा है कि 500 + 500 1000 नहीं हो सकता. But actually he have used the logic कि 5 + 5 10 है. So 500 + 500 should have been 1000. So let's see bit of theory कि कैसे लॉजिक डेवलप होता है और लॉजिक कैसे बनता है. So लॉजिक के स्टेटमेंट्स होते हैं, उसे प्रपोजिशंस बोलते हैं एंड वो इधर ट्रू होता है या फॉल्स होते हैं. लाइक 1 + 1 = 2 ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट 1 + 1 = 3 ये स्टेटमेंट गलत है. उसमें कुछ डाइसी नहीं है, कभी कभी ट्रू है, कभी कभी फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल आज ठंड है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. बट ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम बता नहीं सकते कि वो कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा. फॉर एग्जाम्पल x + 2 = 5 ये ओनली केस ऑफ 3 में ट्रू होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ऐसे स्टेटमेंट का बनके एक प्रीमाइस बनता है. बहुत सारे जो फैक्ट्स है वो इकट्ठा करते हैं, जैसे मेरे नेफ्यू ने किया 1 + 1 2, 1 apple + 1 apple 2 apple, and he come to the argument 100 + 100 = 200. एंड उसने कंक्लूड क्या किया, फिर से जाके 1 + 1 = 2. अगर मैंने बताया नहीं होता 1 + 1 = 2 एंड एग्जाम्पल्स दिए होते जैसे मैंने नेक्स्ट टाइम किया, आई टॉट हिम टेबल ऑफ 2. 2 ones are 2, so 2 I showed him 2 ones, 2 times 1 है, so it is 2. 2 times 4 it is 4. And after only these two observation he was able to derive, उसने derive किया पूरा 2 10s are 20 तक. So he was able to build argument and conclude 2 के टेबल में क्या पैटर्न है. So इस प्रकार से लॉजिक बनता है, बच्चों के दिमाग में भी बनता है, बट कभी कभी वो दिखता नहीं. एंड लॉजिक का उपयोग अलग अलग चीजों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखने में होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रीन बॉल, बट बच्चा कभी कभी ये भी कह सकता है कि ये ग्रीन बॉल है पर उसके ऊपर ब्लैक कलर का समथिंग है. इफ यू आर एबल टू सी दिस, उसने और एक एट्रीब्यूट देखा ये सर्कल है, शेप उसका सर्कुलर है. ग्रीन बॉल और येलो बॉल में कुछ सिमिलैरिटीज है, उसने रिलेशनशिप देखा. वैसे ही सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स भी बच्चे देखते हैं. जैसे 2 के टेबल का एग्जांपल मैंने बताया, ही वाज एबल टू सी द पैटर्न कि हम 2 ऐड कर रहे हैं एवरी टाइम. सो इफ वी गिव देम इनफ इंफॉर्मेशन एंड वी आस्क देम इनफ क्वेश्चंस, दे कैन फाइंड attributes of different things, not just mathematical. Okay, let's go to the next part. It is about हम जो आगे एक्टिविटीज देखने वाले हैं उसका कुछ फ्रेमवर्क है. तो वो थियरीज हम देखेंगे इन शॉर्ट. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट. द फर्स्ट थियरी इज कंस्ट्रक्टिविज्म. दैट इज, जैसे मैंने बताया कि
ये येलो बॉल है ऐसे बच्चों को बताया, तो वी गिव देम इंफॉर्मेशन एंड ये येलो कलर है, एंड इफ आई आस्क और क्या येलो कलर का दिखता है, बच्चे कुछ जवाब देंगे. समटाइम्स दे विल से कपड़े है, सन है, इवन कभी कभी गलत जवाब भी आते हैं, लाइक क्लाउड भी येलो कलर का दिखा होगा कभी कभी. सो ऐसे जवाब भी आते हैं, बट दे कंस्ट्रक्ट. येलो कलर ये कंसेप्ट है, उसके ऊपर वो उनका नॉलेज बनाते जाते हैं. बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज ये है, नॉलेज उनका बढ़ा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे मराठी में ज्ञान रचनावाद कहते हैं. आई डोंट नो हिंदी वर्ड फॉर दिस. सो दे कंस्ट्रक्ट, दे बिल्ड स्टेप्स ऑन द बेस. सो लॉजिक इज द बेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. एंड आस्किंग क्वेश्चंस टू द किड. बच्चों को जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पूछोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी नॉलेज बिल्ड होने में. एंड द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू यूज इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. सो डायरेक्टली बच्चे को अगर बोल दिया कि कुछ बनाओ, ये येलो कलर है, येलो कलर से कुछ बनाओ, ही वोंट बी एबल टू डू दैट. सो ये स्टेप्स है, 6 स्टेप्स. पहले बच्चों को कंसेप्ट याद आनी चाहिए, फिर वो समझनी चाहिए. मतलब ये येलो कलर का बॉल है, तो ये याद रहना चाहिए. फिर येलो कलर का बॉल पॉइंट आउट करना चाहिए विथ ऑल अदर बॉल्स. देन अप्लाई. कौन सा बॉल और क्या येलो कलर का होता है, दैट इज एप्लीकेशन. एनालिसिस. एनीवन कैन थिंक एनालिसिस कैसे होगा सेम कंसेप्ट का? एनीवन? रिमेंबर इज ये येलो कलर है. अंडरस्टैंड मतलब येलो बॉल ढूंढना. अप्लाई मतलब और क्या येलो कलर का होता है वो बोलना. एनालाइज मतलब कुछ फैक्चुअल चीजें होती है, जैसे सन येलो ही होता है, दे विल कम टू दैट कंक्लूजन कि ये येलो ही होता है. बॉल्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, चॉकलेट्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, चॉकलेट के रैपर्स, कपड़े अलग अलग होते हैं, बट सन विल बी येलो. देन दे कैन इवेल्युएट कि 4 कलर हमने पढ़ाए बच्चों को, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड. दे कैन इवेल्युएट कि पौधा जब होता है समटाइम्स उसके पत्ते का कलर ग्रीन होता है, और जब कुछ टाइम चला जाता है इट कैन बिकम येलो. एंड ये सब नॉलेज यूज करके दे कैन क्रिएट समथिंग, कुछ बना सकते हैं. इसका मैं अलग एग्जांपल शेप्स में दूंगी कैसे क्रिएट करते हैं. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट कि एक्चुअल बच्चों का मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग कैसे बढ़ाए. उसमें 3 पार्ट्स हम देखने वाले हैं. फर्स्ट इज कंपैरेटिव्स, सेकंड इज नंबर्स, एंड थर्ड इज शेप्स. सो कंपैरेटिव्स मतलब दिस, लेस देन, मोर देन, टॉल, शॉर्ट. कैन यू टेल सम मोर जो हम बच्चों को सिखाते हैं? आई फील मैं ही सिर्फ Few बोल and रही many. हूँ. सॉरी? Few and many. few, many. Okay, it is same as less, more. Vocabulary अलग है सिर्फ उसकी. Long, short, big, small, hot, cold. ये एकदम बाइनरीज रहते हैं. Near, उसके far. नियर, फार, यस. उसके बीच में कुछ नहीं होता, हम नहीं सिखाते, सिर्फ 2 एक्सट्रीम चीजें सिखाते हैं बच्चों को. एंड जब बताते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज टॉल एंड दिस इज शॉर्ट. ये वेग हो गया. ये जरूरी भी है, आई एम नॉट सेइंग कि ये वेग है तो ये पढ़ाना नहीं है बच्चों को, बट पेन कितना शॉर्ट है या फिर पेंसिल कितनी टॉल है, ये जब आता है एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है दोनों में, या फिर बिग बॉल एंड स्मॉल बॉल, तो बड़ा कितना बड़ा है, वहां पे नंबर्स का अंडरस्टैंडिंग शुरू होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है 2 चीजों में. तो
वो एग्जैक्ट डिफरेंस जब आता है वी कम टू द नंबर पार्ट, क्योंकि वो पेन कितना बड़ा है, थोड़ा बड़ा है या फिर थोड़ा छोटा है, इससे कुछ मतलब नहीं बनता। 2 सेंटीमीटर छोटा है, 2 मिलीमीटर छोटा है, 2 मिलीमीटर बड़ा है, एनीथिंग लाइक दैट, या फिर बॉल 500 ग्राम से बड़ा है, यहाँ पे नंबर आते हैं। जब बच्चे कंपैरेटिव्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां पे नंबर्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को। सो लेट्स सी दिस वीडियो। So what they were doing, जो स्टेयरकेस होता है घर का, वहां पे अपर्णा दीदी ने नंबर्स लगाए 1 to 10 एंड उनके बच्चे जब क्लाइंब अप करते हैं 1 to 10 काउंट करते हैं और नीचे आते समय 10 to 1। तो उससे क्या होता है, दे नो नंबर की फिगर कैसे दिखते हैं और उसे क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट थिंग, जैसे हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में देखा, पहली चीज नंबर्स के बारे में ये होती है कि नंबर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 3। सो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो नंबर आइडेंटिफिकेशन आना, उसके लिए वी कैन टेक बहुत सारे गेम्स या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। आई शो यू जस्ट सम ऑफ इट। तो क्ले आई थिंक सब बच्चों के पास रहता है। तो क्ले का जो बॉल रहता है उससे नंबर्स बनाने के लिए बच्चों को बोलना है। दैट हेल्प्स विद देयर फाइन मोटर स्किल्स अ लॉट। सो क्ले जितना आप यूज करोगे बच्चे की पढ़ाई में, इट इज द बेस्ट मैनिपुलेटिव, आप उससे कुछ भी पढ़ा सकते हैं। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ऐसे बनाया। ऑब्वियसली बच्चों को हेल्प की जरूरत होती है नंबर बनाने में, वो आइडेंटिफाई करने में। तो ये नंबर 2 बन गया। फिर 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम आगे आएंगे, वैल्यू अंडरस्टैंडिंग कि नंबर की वैल्यू कितनी है, उसके लिए भी हम क्ले यूज कर सकते हैं। 2 बॉल्स बनाओ या फिर क्ले का कुछ बनाओ, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाओ। तो आप उसमें बता सकते हैं आइसक्रीम बनाओ, टॉफी बनाओ, बॉल बनाओ, बैट बनाओ, एनीथिंग दैट योर किड इज अलाइन टू। बच्चों को जो चीजें अच्छी लगती है वो बनाने के लिए, बट उतने नंबर बनाने के लिए। देन अंडरस्टैंडिंग नेम्स ऑफ नंबर्स, ये दोनों चीजें यूजुअली साइमल्टेनियसली होती है। नंबर आइडेंटिफाई करना और उसका नाम याद रखना। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो उसके लिए हम कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जो पत्ते खेलते हैं ना। So here we can ask them to count big diamonds. कितने हैं? 7. 7 ऐसे दिखता है। So in this way नाम याद रखने में, या फिर दीदी ने जो घर पे किया है, that also helps in remembering name and remembering sequence and identification of numbers. Sequence, या फिर आप चार्ट बना सकते हैं। इतने स्टेयरकेस नहीं है तो सिमिलरली फ्लोर पे नंबर्स बना के रख सकते हैं। ऐसी एडहेसिव टेप आती है, उससे बना सकते हैं, पेंट से बना सकते हैं, एनीथिंग दैट यू हैव एट योर प्लेस। चौक से बना सकते हैं, चौक का इजीली खराब होता है बट टेम्पररी वी कैन मेक। उसके बाद कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब कितना, हाउ मेनी। तो अंडरस्टैंडिंग कार्डिनलिटी मतलब these are pencils, these are 2 pencils, so this is cardinality of this set of pencil. बच्चों को कार्डिनलिटी ये बड़ा शब्द नहीं हमें बताना है, बट मैथमेटिकली उसे कार्डिनलिटी बोलते हैं। कार्डिनलिटी मतलब सिंपल इज हाउ मेनी। उसके लिए हम डे टू डे लाइफ में सब्जी लाई तो पूछ सकते हैं कि टेल मी देयर हाउ मेनी apples I have brought, how many carrots I have brought. They will count it and tell you कितने हैं, कितने apples है, कितने गाजर हैं and so on. या फिर पूछ सकते हैं हमारे घर में कितने पौधे हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने रूम्स है,
ऐसी वेरिडी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हाउ मेनी के बारे में. देन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज ऑफ नंबर्स. एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज 1, बट 1 मतलब एग्जैक्टली कितना. सो दिस लुक्स लाइक 1, the shape of pencil looks like 1, but I have 2 pencils, I have 2 units with me. तो वो वैल्यू समझने के लिए क्ले का जो एक्टिविटी बोला, सो दैट यू कैन डू इज नंबर बनाओ क्ले का और उसके सामने उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखो. फॉर एग्जाम्पल ये 1 बनाया, 1 बॉल, 2 बनाया, 2 बॉल्स ऑफ क्ले एंड सो ऑन. सो उससे नंबर का शेप, नंबर का नाम एंड उसकी वैल्यू, ये 3 चीजें बच्चे कोरिलेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली डायरेक्टली जंप नहीं करना है इन सब पे, धीरे धीरे ही जाना है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. रिलेटिंग वैल्यू ऑफ नंबर एंड नंबर टू वैल्यू. सो सेम एक्टिविटी, बेसिकली एक्टिविटी सेम ही है, उससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं. या फिर रिलेटिंग वैल्यूज के लिए मैच द पेयर जैसे एक्टिविटीज हम घर पे बना सकते हैं कि 1 उसके सामने कुछ सम नंबर ऑफ बॉल्स, 2 उसके सामने सम नंबर ऑफ बॉल्स, तो 1 एंड 1 ऑब्जेक्ट मैच करो, उसके सामने 1 का कार्ड लेके रखो. अपर्णा दीदी ने शेप्स का बनाया है मैच द पेयर. आई विल शो यू कि वैसे ही आप नंबर्स का भी बना सकते हैं. एंड एट द एंड ये सब समझने के बाद बच्चों को कैलकुलेशन समझता है. 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4 एंड सो ऑन. एंड बच्चों को इजी कैलकुलेशन जल्दी समझ जाता है. 1 + 1 सेम नंबर होता है, 2 + 2 सेम नंबर होते हैं दोनों तरफ. 2 + 3 पूछा तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है. सो फॉर दैट एज वेल यू कैन यूज कार्ड्स. सो 7 + 1 काउंट करो कितने डायमंड्स है एंड कितने स्पेड है. सो 7 + 1 8. फिर 8 का कार्ड ढूंढ के उसके सामने रखो. सेम विथ सब्ट्रैक्शन यू कैन डू. सो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज नंबर्स के लिए हम ले सकते हैं. आई विल सजेस्ट कि जितना हो सकते हैं नंबर्स के लिए विजुअल रखो कि वॉल पे कुछ चार्ट बनाया है, जमीन पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्योंकि नंबर्स दिखते रहना और फिर उसका वैल्यू का अंडरस्टैंडिंग होना एंड देन कैलकुलेशन, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस रहती है. जितने ज्यादा टाइम बच्चा नंबर देखेगा और उसका नंबर बोलेगा, इट विल बी इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड द नंबर. एंड न्यूमरसी अगर अच्छी है तो जैसे हमने देखा, उन्हें मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग बच्चों की बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शेप. ओके, सो आई थिंक एक एक्टिविटी मिस हो गई.
Should I explain this? Yes. हाँ, तो ये कुछ पजल्स है जो इधा युवा 6 months के थे तब से वो देख रहे हैं, और अभी 2 years के हुए तब से वो बहुत अच्छे से मैच करते हैं। तो ये अधेसिव से हमने घर पे कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं, जो अपूर्वा ने दिखाया। तो यहाँ पे वो ईधा उसको हेल्प कर रही है एक्चुअली कि क्या शेप है और किस तरीके से कहाँ पे पुट करना है, इसलिए। एंड पहली जो एक्टिविटी थी वहां पे मैच द पेयर काइंड ऑफ किया। वहां पे उन्होंने शेप्स अधेसिव से बना के रखे हैं फ्लोर पे एंड बड़े बड़े कटआउट्स बनाए हैं कार्डबोर्ड के। सो मैचिंग की कौन सा स्टार है, स्टार के साथ स्टार का कार्डबोर्ड का कटआउट रखना। सो ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। अपर्णा दी, ऑडियो था? Were you able to listen to audio? नहीं, इतना नहीं था, पर वो विजुअली अंडरस्टैंड हो रहा था। Okay, That is okay, not fine. issue, yeah. No, I wanted to give a stress on कि जैसे Yes. सेकंड वीडियो में वो शेप्स रख रहे थी, सचिन दादा was asking them. He was never told कि ये this is triangle, वो ट्रायंगल के यहाँ रखो, because उन्होंने पहले सीखा है। He was just helping. That is, हमने जो वाइगॉट्स्की का देखा, zone of proximal development. हाँ, He was helping. So he was helping them to understand, to do the task, and never told them कि ये triangle है तो यहाँ पे रखो। Sometimes ऐसे होता है, हम बहुत excited रहते हैं and we just do instead of them. So वो जो craving है वो थोड़ी कंट्रोल में रख के जस्ट उन्हें हेल्प करना, क्वेश्चन पूछना, मोटिवेट करना इज इम्पोर्टेंट। सो नाउ कम टू द पार्ट ऑफ शेप। वी कैन यूज एन नंबर ऑफ थिंग्स विथ शेप्स। बहुत सारी चीजें रहती है शेप्स के लिए। सो शेप्स में पहली चीज क्या आती है? ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द शेप, कि दिस इज सर्कल। अगर यही समझ में नहीं आया तो आगे कुछ नहीं हो सकता। दिस फेस इज स्क्वायर शेप एंड सो ऑन। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे दीदी ने किया है वैसे मैच द पेयर कि कौन सा शेप कौन सा है, करेक्ट शेप में रखो, या फिर जो इधा इवा एक्टिविटी कर रहे थे वैसे बहुत सारी एक्टिविटीज आती है कि शेप एंड उसके लिए पुट करने के लिए जगह रहती है कि सेम शेप और बच्चों को वो शेप उसमें रखना है। एट दैट टाइम इफ यू टेल देम कि कौन सा शेप है, दिस इज डायमंड, तो डायमंड की जगह डायमंड रखो। ये बहुत बार इटरेट होने के बाद बच्चों को शेप का नाम याद रहता है। फिर प्रॉपर्टीज आती है शेप्स की। समटाइम्स 2 साल के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि ये दोनों स्क्वायर है, बट कैन यू टेल मी विच वन ऑफ इट इज द स्क्वायर एंड विच इज नॉट? रेड और ब्राउन, टेल मी द कलर। कौन सा स्क्वायर है और कौन सा स्क्वायर नहीं? रेड स्क्वायर है ना? हाँ, रेड इज स्क्वायर एंड दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। सो बेसिक प्रॉपर्टीज बच्चों को जो है वो पता होनी चाहिए कि सारी साइड्स इक्वल है। देयर आर पोएम्स फॉर शेप्स। वो पोएम्स गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आपको मिलेंगी। आई विल Hello. I can. Apurva, I want to share something about the shapes, songs and Okay. rhyme. Okay. So मैं घर में बहुत बार यूज करती हूँ शेप्स समझाने के लिए, जो उनको अभी बहुत अच्छे से याद हो गया है। एक मराठी में है सर्कल इंट्रोड्यूस करने की,
लिए कि गोल गोल चांदोबा झाडा मागे लपला, गोल गोल बांगडी आईने घातली, लाइक दिस. एंड कुछ तो हमने खुद ने भी प्रिपेयर किए, जैसे मुझे ट्रायंगल समझाना था तो ट्रायंगल के लिए ऐसे ही मैंने बोलता, वो पूछे थे आई ये क्या है, आई ये क्या है, तो मैं बोलती ट्रायंगल ट्रायंगल यू हैव 3 एंगल, दैट्स व्हाई एवरीवन कॉल्स यू ट्रायंगल. तो इस तरीके से ये छोटे छोटे यानी मन से बनाए हुए हैं ये. एट द सेम टाइम हिंदी में भी एक सॉन्ग है कि दादी की बिंदी गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, इस तरीके से. तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स जो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे भी ईधा ईवा कोई शेप्स उनके सराउंडिंग्स में देखते थे तो वो उस गाने से उसे इंट्रोड्यूस करते थे. यानी अभी भी वो स्टार को डायरेक्ट स्टार नहीं बोलते, उनको अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो वो बोलते ट्विंकल ट्विंकल. तो इस तरीके से हम शेप्स को यूज कर सकते, शेप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. वो बहुत फन लर्निंग है. तो शेप्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये बहुत अच्छा एक मीडियम है. एंड पोएम्स, हाँ बच्चों को पोएम्स बहुत अच्छी लगती है. दे एक बार याद रहने के बाद वो वही बोलते रहते हैं. सो जिसमें शेप और उसकी प्रॉपर्टी है, इट इज इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. यू कैन यूज ऑब्वियसली यूज फॉर नंबर्स एज वेल. नंबर के लिए भी कुछ पोएम्स है इंग्लिश में. सो ये चीजें गूगल पे मिलेंगी. इफ टाइम परमिट्स, स्क्वायर का जो पोएम है मैं लास्ट में सबको बताऊंगी. इट इज रियली नाइस, बच्चों बहुत एंजॉय करते हैं. देन डिफरेंट ओरिएंटेशन में शेप समझ आना, मतलब हमें ये स्क्वायर है ये सबको पता है, बट स्क्वायर ऐसे किया तो हम भी कभी कभी बोलते हैं ये डायमंड है, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन बदला है बट उसकी प्रॉपर्टीज बदली नहीं है. वी कैन से कि ये डायमंड है, दैट इज रोम्बस, बट दिस इज स्क्वायर इटसेल्फ, क्योंकि उसके चारों एंगल्स राइट एंगल्स है. सो अलग अलग ओरिएंटेशन में बच्चों को शेप्स दिखाना, ये थोड़ी लेटर स्टेज आती है बट वो इम्पोर्टेंट है. नहीं तो ट्रायंगल ऐसे ही होता है, उल्टा किया तो वो ट्रायंगल नहीं है, या फिर कर्व्ड साइड्स है तो वो ट्रायंगल है फिर भी, क्योंकि वो रेगुलर हमें जैसे ट्रायंगल दिखाया जाता है बुक्स में वैसा ही ट्रायंगल है. सो अलग अलग ओरिएंटेशन बच्चों को शेप की दिखाना बहुत जरूरी होता है. देन जैसे दीदी ने बोला कि आइडेंटिफाइंग शेप इन सराउंडिंग, ट्रायंगल बताया, स्क्वायर बताया, बट वो कहाँ दिखता है, स्क्वायर शेप की कौन सी चीजें होती है, वो बच्चों को जितना पूछेंगे शुरुआत में बताना पड़ता है कि हाँ मैट स्क्वायर शेप की है, हमारा बेड स्क्वायर शेप का है अगर हो तो, नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप का है, लैपटॉप की स्क्रीन रेक्टेंगुलर है, मेरा फोन रेक्टेंगुलर है, हमारे घर पे जो बैठने के लिए स्टूल है वो उसका बेस सर्कुलर है या फिर स्क्वायर है, डिपेंडिंग आपके घर में जैसे शेप्स अवेलेबल है वो बताना है. एंड फिर बाद में पूछना है कि ये कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप मुझे लाके दो. ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी हम ले सकते हैं. सो इसके लिए मेनली क्वेश्चंस पूछना कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है. सो उससे वो शेप का अंडरस्टैंडिंग बच्चों का बहुत स्ट्रांग हो जाता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्रिएट न्यू शेप्स यूजिंग गिवन शेप्स. सो दिस इज अ गेम, हम भी खेल सकते हैं. इट इज रियली इंटरेस्टिंग गेम. दिस इज कॉल्ड टैनग्राम. उसमें 2 बड़े ट्रायंगल्स, 2 छोटे ट्रायंगल्स, एक मीडियम ट्रायंगल, 1 स्क्वायर एंड 1 रोम्बस होता है. सो ये सब शेप मिला के वी कैन मेक n number of things like all alphabets, all numbers, even many, like I guess we can make around 500 different kind of shapes using just these many shapes. तो ये टैनग्राम से बेसिक जो शेप्स हैं वो बच्चों को याद आते हैं और उससे कुछ नया क्रिएट करते हैं. जैसे ये 2 बड़े ट्रायंगल्स हैं, 2 बड़े ट्रायंगल से हम क्या क्या बना सकते हैं. सिर्फ ये 2 बड़े ट्रायंगल दिए, ये रेड एंड ये ग्रीन, ये 2 ट्रायंगल जोड़ के हम क्या क्या बना सकते हैं. एनीवन,
व्हाट इज दिस? न्यू शेप कौन सा है? कौन सा है ये न्यू शेप? ओके, दिस इज ट्रायंगल अगेन। दो ट्रायंगल बना के जोड़ के एक ट्रायंगल बना, ऐसे जोड़ा तो शेप अलग बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, या फिर डायमंड कह सकते हैं बच्चों को, इफ दे आर कंफर्टेबल विद द वर्ड डायमंड। अगर ऐसे जोड़ा तो कौन सा शेप बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर। यस, स्क्वायर बन गया। सो सिर्फ दो ट्रायंगल से हमने तीन अलग अलग शेप्स बनाए। तो बच्चों को ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स लेके कुछ पिक्चर बनाओ, ये शेप्स लेके कुछ पिक्चर बनाओ। पहले एक ही शेप देना है, सिर्फ ट्रायंगल देके बनाओ या फिर ऐसे कटआउट्स देके उससे कुछ बनाओ। दैट हेल्प्स अ लॉट कि उसके ओरिएंटेशन समझने में बच्चों को हेल्प होती है और वो कुछ नया क्रिएट करते हैं। व्हेन दे आर क्रिएटिंग समथिंग, उनका जो बेसिक कंसेप्ट है शेप का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट्स है बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये तीन चीजें कंपैरेटिव नंबर्स और शेप बहुत इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉर्टिंग। सो अगर कुछ डाउट्स है या फिर कुछ पूछना है अभी पूछ के फिर हम आगे जाएंगे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ स्वाति ये हाँ। एक्चुअली दो अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है क्रॉस जैसा दिखता है, जैसे मतलब कि राइट और रॉन्ग हम लिखते हैं ना, तो रॉन्ग हाँ। जैसे लिखते हैं क्रॉस वैसे, और एक होता है प्लस होता है। तो हाँ। बच्चे क्या हो जाते हैं कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रॉस कौन सा है और प्लस कौन सा है। प्लस कौन सा है? राइट, स्लाइट डिफरेंस होता है, क्योंकि एकदम ऑपोजिट भी नहीं होता, एकदम डिफरेंट नहीं होता वो। उसका ओरिएंटेशन अलग होता है। हाँ राइट। So this is plus sign हाँ हाँ राइट and this is cross. राइट। तो हम जिस एंगल में बैठे हुए हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं उनके एंगल से, उनको दोनों सेम दिखते हैं, मतलब कि हाँ थोड़ा सा भी टिल्ट करो तो सेम दिख जाता है, ऐसा हो जाता है। Okay, so shapes के पहले we can introduce concept of lines. This is standing line. This is sleeping line. These two are slanting lines. So अगर ये तीन कंसेप्ट बच्चों को अच्छे से पता है तो आपने जो बोला प्लस और क्रॉस में डिफरेंस समझ नहीं आता, that they will able to understand. प्लस क्या होता है? one standing line and one slanting line. तो standing and slanting हुआ तो वो प्लस हो गया, दो slanting lines बन गए तो वो क्रॉस हो गया। So that will help. Thank you. हाँ। Yes. Anyone else? Okay. So let's go to the next part, sorting. We'll first see a video of Ida and Eva again. I'm sorry. ये वीडियो जब इधर इवा अभी वो 2.5 years के हैं, ये जब 2 years के थे तब का है, क्लासिफिकेशन का वीडियो है। क्लासिफिकेशन कंसेप्ट अपूर्वा आपको बताएंगी आगे। बहुत सारे फल एक बाउल में रख दिए और वो उसे सॉर्ट कर रहे हैं। उन्हें हम पूछ रहे हैं कि मौसम्बी कुठे है, देन डाळिंब, काकड़ी, ईवा के हाथ में बीच में एक काकड़ी आ गई थी, तो उसने वो पीछे रख दी,
क्योंकि वो तब उस टाइम सॉर्ट नहीं करनी थी इसलिए। So now they are saying, वो बोल रही है दोन दोन, so वहां पे क्लासिफिकेशन में नंबर अंडरस्टैंडिंग भी, so एक्चुअली हम सेपरेट नहीं कर सकते सारी चीजें, अलग अलग एक्टिविटी क्लब करके मेनी थिंग्स वी कैन अचीव। ओके, सो बेसिकली सॉर्टिंग देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि एज दे वर डूइंग अलग अलग सब्जी अलग अलग उनके नाम से दे वर सॉर्टिंग। तो यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट वो यूज कर रहे थे, सब्जी का टाइप, बट एक पॉइंट पे वो कंफ्यूज हो गई इन लहसुन एंड प्याज। छोटा प्याज कभी कभी दिख सकता है लहसुन जैसा, सो kids may get confused while sorting, but sorting is like a good activity itself to understand many other concepts. Like shapes के लिए sorting हम दे सकते हैं, अलग अलग shapes के cutouts दिए बच्चों को और फिर बोला sort it out. कलर समझाने के लिए हम sorting दे सकते हैं, नंबर समझाने के लिए भी हम sorting दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स दिए जो हम पत्ते खेलते हैं वो, और बोला सेम कलर के कार्ड्स क्लासिफाई करो, दैट इज वन काइंड ऑफ सॉर्टिंग। देन हम बोल सकते हैं बच्चों को कि सेम नंबर के कार्ड्स जिसपे 1 लिखा है वो सब कार्ड्स अलग करो, जिसपे 2 लिखा है वो सब इकट्ठा करो। दिस विल हेल्प टू फॉर देम टू अंडरस्टैंड नंबर्स। इवन शेप्स वी कैन यूज, बिकॉज रेड कलर के 2 अलग अलग शेप्स होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। सो फॉर शेप अलग अलग करने के लिए भी हम कार्ड्स यूज कर सकते हैं। इवन कुछ भी चीजें मिक्स करके उनके खिलौने इटसेल्फ, ऐसे बीड्स बच्चों के पास होते हैं, ब्लॉक्स रहते हैं, मैकेनो रहता है, अलग अलग कलरफुल खिलौने बहुत रहते हैं, वो सब मिक्स करके उन्हें बोलना है कि अलग करो। सो एज आई सेड, अलग अलग एट्रीब्यूट्स से, जैसे कि कलर, शेप, साइज, थोड़े बड़े बच्चे हो गए तो उसका टेक्सचर। फॉर एग्जाम्पल पतला पेपर, एकदम न्यूज़पेपर से भी पतले पेपर के शेप्स कट आउट किए, न्यूज़पेपर के शेप कट आउट किए, रेगुलर प्रिंट आउट के पेज के शेप्स कट आउट किए और कार्डशीट के शेप्स कट आउट किए। उसके टेक्सचर से बच्चे सॉर्ट कर सकते हैं। दैट अगेन हेल्प्स देम फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स, which is also important in this age. कलर, शेप एंड साइज तो हम मैथ्स में ही इंक्लूड करके बच्चों को सिखा रहे हैं। सो पहले क्या करना है, ये बॉल्स अगर दिए तो एक ही एट्रीब्यूट पे सॉर्ट करना है, सॉर्ट यूजिंग कलर्स। तो यहाँ पे सबकी साइज सेम है तो दे कैन सॉर्ट इट ओनली बाय यूजिंग कलर्स। बट इफ आई मिक्स इट विथ सम डिफरेंट शेप ऑफ बॉल, बड़े या छोटे मिक्स कर दिए, तो तभी भी यही बोलना है कि लाइक इफ आई मिक्स दिस बीड्स विथ दोज बॉल्स, आई कैन टेल देम कि सिर्फ कलर के हिसाब से अलग करो। तो वहां पे ये बड़ा बॉल और छोटा येलो बीड, ये दोनों एक ही ग्रुप में होंगे। बट व्हेन दे आर कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विथ सिंगल एट्रीब्यूट, वी कैन ऐड वन मोर एट्रीब्यूट, लाइक first sort it with respect to color or sort it with respect to shape and then second attribute. जैसे कि पहले बच्चों ने कलर के हिसाब से सब अलग अलग कर दिए, येलो बॉल और येलो बीड सब एक साथ है ना। जब ये हो जाएगा, टेल देम कि साइज के हिसाब से येलो का जो सेट है वो साइज के हिसाब से सॉर्ट करो। सो आई हैड रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस लास्ट ईयर। मैं जूनियर केजी के बच्चों को पढ़ाती थी,
सॉर्टिंग के लिए बोल दिया बच्चों को, एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि सॉर्ट करनी है चीजें. आई गिव देम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स. उस पे 2 अलग अलग शेप थे ब्लॉक्स के. एक प्रॉपर स्क्वायर था और एक स्क्वायर के ऊपर थोड़ा राउंड चीज थी. सो कलर के हिसाब से उस बच्चे ने तो सॉर्ट किया ही. उसके बाद खुद से ही उसने रेड कलर के प्रॉपर क्यूबिकल ब्लॉक्स एंड ब्लॉक विद दैट सर्कुलर थिंग, ऐसे आप खुद से ही अलग कर दिए. सो कभी कभी बच्चों को ये इंट्यूशन भी आता है कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंसेस है. सो बेसिकली सॉर्टिंग में हम क्या देखते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस. एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस समझने से बाकी बहुत सारी, दैट इज दिस इज द बेस ऑफ मेनी अदर कंसेप्ट्स, इवन बेस फॉर साइंस, अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. सो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं. सो एज आई सेड, डिफरेंट colored paper with different shapes. So यहाँ पे 2 attributes हमें मिल ही गए. कलर के हिसाब से सॉर्ट करो और शेप के हिसाब से सॉर्ट करो. We can give them different textures, even different size. So जितना complicated बनाना है हम बना सकते हैं. And just with papers we can make a lot of things. फिर सीरियल्स जो रहती है हमारे घर में, मूंग मटकी वगैरह, वो मिक्स करके दिया तो वो बच्चे अलग अलग करते हैं. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइन मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि चना बड़ा होता है इतना, दैट इज इजी टू सॉर्ट, बट मूंग मटकी बहुत छोटे छोटे रहते हैं. सो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत लगती है बच्चों की, एंड दैट हेल्प्स देम टू हैव कंट्रोल ओवर देयर फिंगर्स, विच हेल्प्स देम इन फ्यूचर. So any doubt related to sorting? If not, I will conclude the session. Okay, so I'll quickly go through what we have done. आज हमने क्या क्या देखा. पहले ये देखा कि लॉजिकल रीजनिंग बच्चों को इतने छोटी एज में क्यों जरूरी है. बिकॉज थियरीज हैव प्रूवन कि बच्चों की अर्ली न्यूमरसी हेल्प्स देयर अचीवमेंट इन हायर ग्रेड्स or lifelong achievement, mathematical achievement. Then it is correlated with their language development. It is also correlated with their fine motor skill development. Then we saw what is logic. Logic is set of statements which are built upon some base, that is called propositions and premises. And then we can draw conclusion using the logic. Then we saw what we saw then we saw constructivism and Bloom's taxonomy. So constructivism is constructing their knowledge, not spoon feeding them कि हाँ ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है. There the most important thing is asking question. That method is called as Socrates method. जितने हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों को उतने ही वो जवाब देख के उन्हें समझ आती है चीजें, कंसेप्ट्स. ऑब्वियसली बेस कुछ बच्चों को हमें देना होता है कि ये येलो कलर है, बट येलो कलर पे हम इतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि येलो कलर के बारे में बच्चा खुद से ही नॉलेज डेवलप करेगा. देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, डायरेक्टली हायर ऑर्डर के टास्क पे नहीं जाना है, बेसिक टास्क से लेके बिल्ड करने हैं टास्क, एक्टिविटीज भी जो है वो बिल्ड करनी है. देन वी सॉ कंपैरेटिव्स इज डिफरेंसेस. एक्सट्रीम चीज है टॉल शॉर्ट, उसके लिए आई थिंक मैंने एक्टिविटी नहीं बताया. वहां पे अगेन घर पे जो चीजें हैं हम देख के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा है, मोर कौन से है, किस कप में मोर है, किस कप में लेस है, सीरियल्स वगैरह डाल के. या फिर हम वर्कशीट्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं वॉल पे लगाने के लिए, सो दैट जब भी बच्चा वहां जाता है दे रिकॉल इट. देन वी सॉ वो कंपैरेटिव्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नंबर्स लगते हैं. नंबर्स की कुछ एक्टिविटीज, नंबर्स की क्या क्या चीजें अंडरस्टैंडिंग उसका होना जरूरी है, वो हमने देखा. देन वी वेंट टू शेप्स कैसे समझना है, और
उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स कैसे समझाने हैं एंड एवरीथिंग। आई माइट हैव फॉरगॉट टू टेल यू कि शेप्स के लिए भी हम क्ले यूज कर सकते हैं, लाइंस बना के उसके शेप्स बनाने के लिए बच्चों को बोल सकते हैं। उसके बाद हमने सॉर्टिंग देखा, सॉर्टिंग विद सिंगल एट्रीब्यूट, देन एक एक एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए कुछ भी चीजें दे सकते हैं एंड एक्चुअली उससे बच्चों को हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि सब्जी मंडी से आए, कुछ सब्जी लाई है तो बच्चों को ही बोल देना है सॉर्ट करो, आपका भी काम कम हो जाता है और बच्चों भी सीखता है। सो इन दिस वे वी कैन ऐड स्मॉल थिंग्स, डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजें हम ऐड कर सकते हैं जिससे बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती है। नाउ so the conclusion is again maths is about quantification, that is numbers, pattern identification, अलग अलग पैटर्न्स देखना, वो पैटर्न्स कुछ ड्रॉ किए हुए हो या फिर शेप्स के पैटर्न्स हो, एनीथिंग, एंड उससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों की बढ़ती है। सो ये डायरेक्टली मैंने पहले कभी बताया नहीं है सेशन में, बट मैथ्स हम क्यों पढ़ाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ता है एंड लॉजिकल रीजनिंग हेल्प्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड इफ वी वांट आवर किड टू बी अ नाइस प्रॉब्लम सॉल्वर, वी शुड आस्क देम क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछने हैं और वी शुड आंसर देयर क्वेश्चंस एट द लेवल जो उन्हें समझ आए। कभी कभी बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है कि नहीं बता सकती मैं कि ऐसे कैसे है, ऐसे क्यों है, बट वी कैन गिव देम सम टाइम टू थिंक एंड हम उस पर रिसर्च करके बच्चों को जो समझ आए वैसा और सच्चा आंसर कि कुछ भी नहीं बताना है कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सो ये डेवलप होता है, अगेन आई टेल यू मेरे भांजे का किस्सा। मेरे भाई ने बोल दिया कि मैं रात को मच्छर बनती हूँ और उसे काटती हूँ। 4 दिन तक वो सोचता रहा एंड एट द एंड ऑफ 4th डे उसने पूछा 12 बजे के बाद तू बनती है मच्छर, तो आज मैं 12 बजे तक जागूंगा, मुझे दिखा तू कैसे मच्छर बनती है, फिर ही मैं जाके सोऊंगा। देन आई टोल्ड मी नहीं, वो झूठ था। फिर उसे सुकून आया कि नहीं, हाँ ऐसे नहीं हो सकता। बट 4 days वो सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। डायरेक्टली उसने किसी को पूछा नहीं, बट देन आई एक्सप्लेन्ड हिम कि ऐसे नहीं होता, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान ही रहती हूँ, ऐसे कुछ हो नहीं सकता, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। एंड आफ्टर दैट उसने लॉजिक यूज करके, जब हमारा झगड़ा हुआ, ही यूज लॉजिक, सेम लॉजिक, एंड ही सेड अब मैं मच्छर बनूंगा और तुझे आके रात को काटूंगा। ही नोज कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल वो जो एक छोटा झूठ बोला था उसके ऊपर he built something and he knew कि वो जो बोल रहा है वो सच्ची में नहीं होगा। So in this way अगर सच्चे जवाब दिए तो बच्चों का लॉजिक डेवलप होता है and they use it. So I think I am done if you don't have any problems, otherwise we can take up with the questions. Marathi, Hindi, anything I'm comfortable, and I'm sorry मैं बहुत बार इंग्लिश में शिफ्ट हो गई, हिंदी को स्टिक करके नहीं रह पाई। नो इशू। सो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल विथ हिंदी एंड मराठी। हम लोग पेरेंट्स है तो हाँ, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया करो। हम रोज हमारे बच्चों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमें खुद को बहुत बार क्वेश्चन होता है, यार इसका मैं क्या जवाब दूं और इस चीज को कैसे डील करूं। सो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ गलत होता है, सही होता है, सब कुछ सही होता है और सब कुछ गलत होता है। सो
बच्चे बनिए यानी हम उतना बॉदर नहीं करेंगे, हम अडल्ट हो गए इसलिए हम सोचते हैं यार मैंने कुछ पूछ लिया वो गलत हुआ तो क्या होगा। सो प्लीज पूछिए सवाल, हम हमारे बच्चों को ऑब्जर्व करें, हम किस तरीके से दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो कुछ शेयर कीजिए कि मैं ये एक्टिविटी लेती हूँ मेरे बच्चों के साथ, ये राइट है या इसे और कैसे इम्प्रूव करना है, या तो इस चीज का और किसी को हेल्प हो सकता है। इस तरीके से कीप शेयरिंग। एंड ऑल्सो आई वांट टू ऐड, अगर हमें बच्चों ने क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये जरूरी लग रहा है, तो हमें भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि बच्चे हमें कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। सो इफ वी कीप आस्किंग क्वेश्चंस ओनली देन दे विल लर्न फ्रॉम अस। सो इट इज फाइन। ऐसा भी हो सकता है अभी कि वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन कि हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, बट वी कैन श्योरली रिसर्च ऑन दैट एंड आपको क्वेश्चन का वो जवाब देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि हम डायरेक्टली अभी बता सकते हैं, बाकी कोई पार्टिसिपेंट भी उसे जवाब दे सकता है। इट्स नॉट लाइक हमें ही जवाब देना है। वी कैन जस्ट ओपन दिस प्लेटफॉर्म फॉर जनरल डिस्कशन। Is it fine if I stop sharing? Yes, you can. So, अगर आप बोलना नहीं चाहते तो आप टाइप भी कर सकते हो आपके क्वेश्चंस। आज यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहे, पर आप अगर हमारे पेरेंट्स ग्रुप में डाल सकते हो कुछ वीडियोस या तो कुछ एक्टिविटीज, वो भी कीजिए। हाँ सुधीर बोलिए। पूर्वा, हेलो। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी नाइस सेशन। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर मिला एंड हम कर सकते हैं ऐसा भी लगा। मीन्स बहुत डिफिकल्ट है ऐसा भी नहीं लगा आपने ये सेशन लेने के बाद। एंड मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन था कि ये हम कहीं ना कहीं पे तो ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, बट इससे माइंडफुली थॉटफुली हमारे प्रोसेस में आए ऐसा, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कैसे कैसे हम बेसिकली कॉन्शियसली करें इस चीज़ को, उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बट ये आदत कैसे बिल्ड करें? ओके, नाइस क्वेश्चन सुधीर सर। सो आदत जो हमें बिल्ड करनी है उसके लिए हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। ये चीजें बच्चों को ये चीजें आनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल नंबर अंडरस्टैंडिंग अगर करना है तो ये चीजें आनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स है। अगर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो वी कैन थिंक ऑफ एक्टिविटी, या फिर हमें एक्टिविटी पता है और ऑब्जेक्टिव्स भी पता है, वी कैन कोरिलेट कि ये एक्टिविटी से ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। यस, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। हाँ, आई थिंक स्वाति को कुछ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लेने के बाद मैं ऐड करती हूँ, यानी सुधीर को भी। स्वाति? या एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं, बट एक ऐसा डाउट था कि जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे बच्चों के साथ हम बात करते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पूछ के उनसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन काफी बार क्या होता है कि हम दो अलग अलग जो बड़े लोग होते हैं वो भी बात कर रहे तो वो भी वो कैच कर लेते हैं। तो तब है ना वो दिमाग में नहीं आता कि यार बच्चे भी सीख रहे हैं, या फिर पूछ, जैसे कि मैंने कैजुअली किसी को बोला ये कुछ काम का नहीं है, तो वो इतनी बार रिपीट किया उसने कि कुछ काम का नहीं, ये कुछ काम का नहीं, ऐसे करके, तो जो वो भी वो सीख जाते हैं, वो कैच कर लेते हैं, और वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होता। तो मुझे नहीं पता कि उसको हम कैसे अवॉइड करें और उसको कैसे कॉन्शियसली हम, मतलब बात करना है तो हम हर बार ऐसे नहीं कर सकते, हम बच्चा है तो सामने नहीं करना है, कुछ भी हम कैजुअली ही हम बात कर रहे होते हैं ऐसे। तब सो इन द बेस्ट वे इन अर्ली फ्यू डेज, अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो ट्राई टॉकिंग इन इंग्लिश। इतने जल्दी इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता, बट दैट डजंट लास्ट लॉन्ग, बट क्विकली आप ये कर सकते हो। बट आफ्टर फ्यू डेज यू हैव टू बी केयरफुल कि बच्चों के सामने हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम अलग रूम में बैठे हैं पर बच्चों के कान हमारे यहाँ रहते हैं। सो दैट इज कि वी हैव टू बी
mindful about what we are talking. Yes. यस मुझे एक चीज ऐड करनी थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। स्वाति का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स ये चीज कभी ना कभी फेस करते हैं। तो हमारे केस में भी कैसे होता था कि हम लोग कुछ लड्डू या ऐसी कुछ चीजें है ना, तो वो हमें बच्चों को नहीं देनी है, वो बहुत ज्यादा खाते हैं मीठा, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या शुरू किया था कि हम लोग उल्टा वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे लड्डू को मराठी में लाडू कहते हैं, तो हम लोग उसको डूला ऐसे कहते हैं। तो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं जो मेरे मीनिंगफुल, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर स्लोली दे मेक आउट अरे कि ये लड्डू को ही कुछ दूसरे वर्ड के साथ में यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप दूसरा लैंग्वेज में यूज करते हैं तो भी बच्चे कभी ना कभी वो समझ ही जाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहे शुरू से ही कि हमें कुछ गलत चीज उन तक नहीं पहुंचनी है। तो हमें बहुत पेशेंस पे रखना पड़ेगा, हमारा हर एक वर्ड बहुत संभाल के यूज करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। Yes, absolutely, Sachin Dada. That's what I was saying early, like पहले कुछ दिनों के लिए we can use कि Yes. but Yes, तब तक we have to be mindful, क्योंकि वो जो पहले कुछ दिन है हमें प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, but Yes. they easily decode what we are talking. Yes. एट द सेम टाइम सुधीर का जो क्वेश्चन था या तो कही थी उससे रिलेटेड कि हम जैसे हम बोल रहे कि हमें कॉन्शियस तो रहना ही है, एट द सेम टाइम हमें कुछ प्लान करना है। यानी हम हमारे भी घर में जब इदाहिवा खेलते रहते हैं तो हम यानी मैं जनरली ऐसे करती हूँ कि वो जब खेलते हैं उस टाइम एक टाइम तय होता है कि मैं उनको पर्टिकुलर टाइम पे कुछ एक्टिविटी दूंगी। तो वो टाइम उनके नींद से उठने के बाद का होता है या तो आफ्टरनून में, जब वो आफ्टरनून में थोड़ा पावर नैप लेते हैं उसके बाद तो उनका एक्टिविटी टाइम होता है, या तो वो खेल के आते हैं शाम को घूम के आते हैं उसके बाद का टाइम होता है। तो इस टाइम में वो जब घर के बाहर रहते हैं या तो सोए रहते हैं उस टाइम में वो एक्टिविटी का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और ये एक्टिविटीज बहुत छोटी सी होगी क्योंकि उनके सामने प्रिपरेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। फिर आने के बाद वो ओपन रहता है उनके लिए, वो स्पेस ओपन रहता है कि वो खुद से उस चीज के साथ क्या कर रहे हैं वो एक्सप्लोर करते हैं कि चीज कैसी है, फील करते हैं, यानी सेंसेस उनके यूज करते हैं, देखते हैं पास से, हाथ लगा के देखते हैं, कुछ आवाज हो रही है क्या उस चीजों की देखते हैं, फेंक के देखते हैं, इस तरीके से। तो वो ओपन प्लेटफॉर्म होता है उनके लिए। पर हाँ, हमें दिन में से एक टाइम तो भी रखना चाहिए उनके लिए कि वो खुद एक्सप्लोर कर सके चीजों को, जहाँ पे अडल्ट्स करके हम बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के मोड में रहे। अगर वो कुछ पूछते हैं तो हाँ, हम उनको सपोर्ट करें या तो हम बताएं उनको कि उनको क्या चाहिए। पर एक टाइम दिन में से ऐसा होना चाहिए कि वो उनका खुद का हो। यस, अपर्णा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम, मेरी बेटी है वो 7 साल की है। थोड़ा सा मतलब आपके टॉपिक से हटके है मेरा क्वेश्चन। वो ना खाना खाने में बहुत टाइम लगाती है और अपने हाथ से खाने को तो बिल्कुल ही तैयार नहीं रहती है। और अगर उसको जबरदस्ती भी बिठाया जाए, उसकी पसंद की चीजें बना के बिठाया जाए तो भी वो बहुत टाइम लेती है। 1.5 से 2 घंटा वो एक प्लेट खत्म करने में लेती है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप प्लीज गाइड करें। यस अपर्णा, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बट ये जो ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम स्पेसिफिकली एक सेशन प्लान कर रहे हैं, वो मस्ट भी जनवरी में होगा। जो एक्सपर्टीज है उनके तरफ से हम लेंगे। तो इस सवाल का आपको जरूर आपको जवाब मिलेगा। पर अभी हम इस चीज को डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हम डेफिनेटली जुड़े रहिए स्पेस के साथ। वो सेशन यानी 7 साल की हो या तो 5 साल की, पर ये पेरेंट्स का का क्वेश्चन होता है, ईटिंग हैबिट्स के लिए क्या करें। तो डेफिनेटली विल टैकल दिस क्वेश्चन। या थैंक यू। थैंक यू। Anyone? Okay, so it's almost 12:19. So I think we should stop today. So at the end of the session, thanks to all. Thanks Apurva for conducting such a nice session. बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमरेसी के ये मेरे भी क्लियर हो गए हैं।
आपका सेशन अटेंड करने के बाद। ये सपना। Ma'am, I have a request to make. Can you post this recording on the group? Yes, sure, Huh? definitely. Yeah, please. Thank you. So, हाँ, सेशन बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू अपूर्वा, थैंक्स टू ऑल सबने अटेंड करने के लिए। एट द सेम टाइम हम एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज वो फील करके हमें शेयर कीजिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल सकते हो या तो ग्रुप पे डाल सकते हो। हम गूगल फॉर्म शेयर कर रहे हैं वैसे भी, तो वो ये हो जाएगा। एट द सेम टाइम एक और चीज बताई थी, अपूर्वा ने ड्यूरिंग द सेशंस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज किए, बहुत सारे। तो वो किट, एजुकेशनल किट्स हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, कोई जबरदस्ती है, जिनको लेना है वो लीजिए। और गिफ्ट करने के लिए भी अच्छे हैं, अभी क्रिसमस आ रहा है तो आप गिफ्ट कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारे 12 एक्टिविटीज है उसमें, जो आप कंडक्ट कर सकते हो बच्चों के साथ, जो मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, फॉर दिस एज ग्रुप ओनली, 2 to 5 के लिए। नेक्स्ट संडे फिर से हम एक एक्साइटिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं, वो मैं जल्दी शेयर करूंगी। कीप शेयरिंग, हमारे पोस्ट शेयर करते रहिए। एट द सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिविटीज अपने बच्चे के साथ ले रहे घर पे, तो मैं कहूंगी कि ये कुछ हमने शेयर किए थे वीडियोस, पर ऐसे कुछ वीडियोस आपके पास भी होंगे तो प्लीज शेयर कीजिए ग्रुप पे, यानी बाकी के पेरेंट्स भी वो एक्टिविटीज ले सकते हैं घर पे, वो हेल्प करेंगे। और अभी तक हमने बहुत सारे सेशंस लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट, आज का न्यूमरेसी था, एक्सप्लोर विजिट, तो ये सारे अगर हम कंटिन्यू लेते रहे तो आई एम श्योरली टेल यू कि बच्चों को स्क्रीन टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी कोई कार्टून देखने की या तो मोबाइल हाथ में लेने की, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से इंगेज रह सकता है। सो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। Thanks to all once again. I really want to thank Aparna Tai and Sachin Dada for giving me this opportunity and helping me through preparation and giving exposure to their daughters' videos, because that helped me a lot to prepare for my session. And this was really nice learning experience for me as well, because before presenting you need to study a lot, and thank you for the opportunity, because that gave me opportunity to study something new. So really thank you Sachin Dada and Aparna Tai. Welcome. Yes. So bye bye to all. Yes, Thank bye. you.